Welcome to Learning Institute. So, hello friends, my name is Abhishek. You're watching chapter number 5, Basic Writing Skills, part 3. Let's begin. So, first is construction of paragraph. So, a paragraph is a collection of sentences around a central topic. So, the sentences are organized in such an order that they convey a complete topic and meaning. सो पैराग्राफ एक कलेक्शन है सेंटेंसेस का जो सेंट्रल टॉपिक होता है, तो मेन टॉपिक होता है उसके अराउंड ही वो सेंटेंसेस होते हैं, उसके बारे में वो सेंटेंसेस होते हैं. द सेंटेंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड इन सच एन ऑर्डर दैट दे कन्वे अ कंप्लीट टॉपिक एंड मीनिंग. सो सेंटेंसेस एकदम ऑर्डर में ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑर्डर में लगे हुए होते हैं जिससे कि कंप्लीट टॉपिक को कन्वे करें और एक कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करें. नेक्स्ट इज writing a paragraph. As such, there is no formula to decide how many sentences there should be in a paragraph. So, a basic paragraph structure consists of the following 5 sentences. पहला होगा topic sentence, then 3 supporting sentence and 8 concluding sentence form a paragraph. So, move next. So, topic sentence. So, topic sentence gives the main idea. ये main idea देता है और इसको हम hook sentence भी कहते हैं. Then it used to draw the readers into the paragraph. एकदम फील देना वो पैराग्राफ की, उस टॉपिक की एकदम फील देना कि पैराग्राफ में आगे क्या होगा. तो ये फर्स्ट मेन सेंटेंस होना चाहिए कि आगे समझ जाएंगे उस पैराग्राफ में क्या आने वाला है, किस तरीके का टॉपिक आने वाला है, एकदम उसको अंदर घुसा देना, उसके माइंड को उस टॉपिक पैराग्राफ में एकदम घुसा देना, बस उसी के बारे में सोचे, कंसंट्रेशन उसका पूरा उस पर हो. देन इट कैन बी एन इंटरेस्टिंग फैक्ट और क्वेश्चन. या तो ये फैक्ट हो सकता है या एक क्वेश्चन हो सकता है ताकि रीडर उस बारे में सोचे और उसके बारे में जाने. द टॉपिक सेंटेंस should convey the idea, opinion or point. Then this sentence use strong verbs and make a bold statement. For example, have you wondered why some student cannot get good grades in academics? तो एक क्वेश्चन हो जाएगा एंड हमारा hook statement हो जाएगा. Then writing a topic sentence. So समराइज करते हैं इसमें हम मेन आइडिया को पैराग्राफ का, शो करते हैं कि आगे पैराग्राफ में क्या होगा, वो आगे जो पैराग्राफ बढ़ेगा उसमें क्या होगा, उसके किसके बारे में है. देन नेक्स्ट इज सपोर्टिंग सेंटेंसेस. देन supporting sentences, as the name suggests, provide explanation and support the topic sentence, main idea of the paragraph. So supporting sentence सपोर्ट करने के लिए होता है मेन आइडिया को, टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए होता है सपोर्टिंग सेंटेंस. देन दिस सेंटेंस गिव द एविडेंस फॉर द टॉपिक कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है या इसके ये एग्जांपल्स हैं, ये ऐसा कहीं हुआ है, ये ऐसा कुछ हुआ है, या इस तरीके से लाइव एग्जांपल्स भी हो सकते हैं. देन दिस सेंटेंसेस इंक्लूड फैक्ट्स, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा टू मेक द स्टेटमेंट मोर कन्विंसिंग. देन इसमें हम फैक्ट्स, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं उसको मोर कन्विंसिंग बनाने के लिए. राइटिंग सपोर्ट सेंटेंस गिव सपोर्टिंग डिटेल्स, फैक्ट्स एंड एग्जांपल ताकि रीडर अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सके. देन कंक्लूडिंग सेंटेंस. द कंक्लूडिंग सेंटेंस रिपीट्स द मेन आइडिया बट इन डिफरेंट वर्ड्स. इट reinforces the opinion या point of view. Writing concluding sentence. Restate the main idea of the paragraph using different words to reinforce the opinion. And next is elements of paragraph writing. So there are 4 key elements that help to constitute a paragraph. These elements are as follows. So first is unity. Unity in a paragraph begins with the topic sentence. The paragraph is unified around the main idea with supporting sentences provides detail about it. So to write a good sentence, one must think about the theme, title and all necessary points one wants to emphasize. Then next is order. By order we means the way we organize our supporting sentences. The idea should be organized in such a way that the reader easily follow the pattern. So idea should be organized. Idea should be organized in such a way that the reader easily follow the pattern. It helps the reader to get
the exact meaning and prevents confusion. So next is coherence. It is a quality that make writing understandable. So in a paragraph, it is very important that sentences are connected well with each other and work together as whole. So ये coherence एक quality है जो कि बनाती है राइटिंग को अंडरस्टैंडेबल। इस पैराग्राफ में ये बहुत जरूरी है, सेंटेंस एकदम अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए एंड पूरा सेंटेंस एक साथ वर्क करना चाहिए एज अ होल टुगेदर। सो ट्रांजिशन वर्ड्स शो सीक्वेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड, रिलेशन अंडर अबव बिलो और लॉजिक इन फैक्ट्स इन एडिशन। सो ट्रांजिशन वर्ड्स जो है वो शो करते हैं सीक्वेंस को, रिलेशन को एंड लॉजिक को। Then last is completeness. If all the sentences are clear and support the main idea, a paragraph is complete. And if enough information and sentence are not there to prove facts, the paragraph will be incomplete. So अगर सेंटेंस क्लियर होगा और सपोर्ट करेगा मेन आइडिया को तो पैराग्राफ कंप्लीट है। अगर उसमें इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, इतने प्रॉपर सेंटेंस नहीं है जो प्रूव कर सकें फैक्ट्स को या आइडियाज को, देन वो पैराग्राफ इनकम्प्लीट रहेगा। नेक्स्ट इज 6 क्विक स्टेप्स टू डेवलप अ पैराग्राफ। सो फर्स्ट, decide an idea and create a topic sentence. Then explain the idea या demonstrate your point. Then give suitable example या examples to support the idea. Then explain the example या example जो आपने example दिया था उसको explain करो. Then tie up the loose ends and conclude. This means that अपने paragraph को end कर दो with a concluding sentence जिससे कि इसका brief explanation मिल सके। तो उससे उसके loose ends tie up हो जाएंगे like that. Look over and proofread. Next is tips for effective writing. So read as much as possible. जो अच्छा extensive reader होते हैं वो always effective writer होते हैं। Next is point 2, punctuations करेक्ट जगह यूज होनी चाहिए जो कि बताते हैं रीडर को कब स्टार्ट हो रहा है कब एंड हो रहा है, एंड ये पंक्चुएशंस ही बनाते हैं मीनिंगफुल यूनिट्स एक पैराग्राफ को। देन बेटर राइट शॉर्ट एंड क्लियर सेंटेंस, डू नॉट यूज टू मेनी क्लॉजेस इन वन सेंटेंस। सो छोटा लिखो, अच्छे से क्लियर लिखो एंड इसमें ज्यादा क्लॉजेस यूज मत करो एक सेंटेंस में। एंड पे अटेंशन टू द ग्रामर एंड स्पेलिंग, उसमें ग्रामर ना हो एंड डू नॉट रिपीट सेंटेंस एज द रीडर में लूज इंटरेस्ट। देन 6 पॉइंट, ऑलवेज रीड वर्क केयरफुली आफ्टर राइटिंग, क्योंकि उसमें कोई मिस्टेक ना रह जाए। देन मेक सिंपल एंड प्रिसीव सेंटेंसेस ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो सके। देन यूज एप्रोस्ट्रॉफीज केयरफुली, वहां पे भी कोई मिस्टेक ना हो क्योंकि उसका मीनिंग भी चेंज हो सकता है। देन मेक सेंटेंस क्लियर एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। Then last point, ensure that single nouns have single verbs and plural nouns have plural verbs. So this is the last topic of this chapter. So don't forget to subscribe and press the notification bell icon. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी न लगी तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मिस्टेक थी, मैं उसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।